think so wonderful. Next time we'll start the moment to shower the plant. फिर हम लोग कुछ traditional करेंगे. Then we'll have a ribbon cut and we all will go there. So just for 2 minutes. To give the standing ovation to Sohil Bhai Sawani for his hospitality and his wonderful Congratulations. Yes. Congrats. Thank you. You deserve. Yes. Fantastic. Thank you so much. So warm and so friendly. Thank you. Please be seated. We'll start in a minute. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो सच्ची मैंने जान गवाई है, नच नच कोयलों पे रात बिताई है। अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो शोपेगा जय हो गाने दे जय हो हाले दे जय हो के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। Now let us welcome Advocate Gaurav Kumar, Mr. Gupta ji, Advocate Sharma ji. Please come here. આઈએ સર પધારો. ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. તમે તો મજામાં કેમ છો? મજામાં છો. કેમ છો સર? મજામાં છો. કેમ છો સર? મજામાં છો. બસ આવો. Advocate Gaurav Kumar is the chief guest of our function, today's function. Advocate Gaurav Kumar is also is a labor law editor. May I request Advocate P.R. Dave to come forward. Mr. P.R. Dave to come on the stage. He is a retired judge of Industrial and Labor Court, Ahmedabad and Surat. आओ सर, आओ, आपका स्वागत है. आओ सर. You can see his age, and at this age also so much enthusiasm and energy has come all the way from Ahmedabad. જોરદાર તાળીથી સ્વાગત કરો બધા જ મહેમાનોનો. જોરદાર તાળીથી સ્વાગત કરો. તાળીનો અવાજ સ્ટોપ ન થવો જોઈએ. બોલ ક્લેપિંગ. તાળી વધવી જ જોઈએ ભાઈ. Next is Advocate S.K. Sharma, who is a guest of honor and also the member of Central Board of PFJC. Recently has been nominated on the Central Board of PFJC. May I request Advocate Sharma to come forward on the stage.
thank you. Mr. Surendra Kumar Suri, Chairman of IFPIP and the guest of honor of today's function. Mr. Suri, he is also 80 plus? नहीं। Yet to file. Yeah, 75 plus I can say. I'm sorry. Please आज come. हिंदी में पंजाबी नहीं केम छो તમારે કેનું મજામાં કેમ છો સાહેબ મજા આવે મજા આવે છે ગુજરાતમાં बहुत मजा આવે સુરતમાં મજા આવી ગઈ સ્વાગત છે આપનું સ્વાગત છે આવો બિરાજો પધારો Mr. સર P.R. Jain, Regional PF Commission on his behalf, Mr. Ajit Jain has come. Mr. P.R. Jain. આવો સર આવો વેલકમ સ્વાગત છે આપનું આવો We had also invested the Deputy Director of ESA SRO Surat, Mr. Manoj Kumar on his behalf. He could not come because of his prior commitment. Mr. Manish Kumar is here. Mr. Manish Kumar, please come forward. Surat, Mr. G.L. Patel. Joint Director, Industrial Safety and Health, that is DISH. Mr. S.C. Bamania. Thank you, sir. Our next guest of honor is Mr. Ketan Desai, who is the President, Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries. He is on the way basically, yes. Next guest of honor is Mr. Dinesh Navadia, who is the Chairman, Gems and Jewelry Export Promotion Council, Gujarat. આવો સર આવો Mr. Dinesh Navadia, please welcome. Civil Association, Mr. Jitubai Vakaria. આવો જીતુભાઈ કેમ છો સાહેબ એકદમ મજામાં વેલકમ સર વેલકમ સ્વાગત છે આપનું The next guest of honor is Mr. Vinod Agarwal, who is the Vice President, South Gujarat Textile Processors Association. આવો Mr. Vinod Agarwal. Swagat hai. Welcome, sir. And last but not least, Janab Maqsood Godil, who is President, Doraji Mehman Jamaat, Surat. Please welcome. He is also on the way. Yes. Chief guests and the important dignitaries, they are on the stage. May I request our audio director to play the national anthem. I'll request all of you to please stand up for the national anthem. Thank you very much. બધા રાષ્ટ્રગીતનું ગાન થાય છે બધાનો ઊભું થઈ જવા માટે એક રિક્વેસ્ટ છે આપણું રાષ્ટ્રગીત અહીંયાથી ડિસ્પ્લે થાય છે બધા ઊભા થઈ જાઓ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सवानी इंस्टीट्यूट जय हो. Well, as I told you, that Savani Institute is a self-financed and autonomous institute started by Mr. Sohail Savani, supported with his family, his parents, the blessing of his parents. Now, Sohail Savani is the beautiful daughter, Halima Sohail. She will give the welcome speech. May I request Halima to come on the stage, please? એવરીબડી વિથ અ બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણી બાળકીને વધાવે દીકરીને અને ખૂબ પ્રોત્સાહન આપો Bismillahirrahmanirrahim. And good morning everyone present here. It gives me immense pleasure to commence the grand inauguration program of Training Institute conceptualized by my beloved father and mentor, Mr. Sohail Savani, whom I lovingly call as Papa. I also welcome everybody who are present here on the dais as well as before me to honor today's function. I take this opportunity to welcome our honorable chief guest, editor of Labour Law Reporter, Advocate Gaurav Kumar.
It's really splendid and blissful to see the gathering of such knowledgeable fraternities from various fields. As I have already informed you all that today we are gathered here for the grand inauguration ceremony of Savani Institute of Labor Laws and Skill Development as a part of fulfilling noble mission of our great Prime Minister under the banner of Skill Development Program for building a nation and make it trillion-dollar economy and give job to all the youngsters of this nation. I also express my warm wishes, welcomes to all industrialists, government officials, advocates, consultants, friends, well-wishers and family members. From this forum, it is give me great pleasure to read out the letter received from Honorable Minister of Labour and Employment, Government of India, Shri Santosh Kumar Gangwar ji, expressing his words of appreciation about the mission undertaken by my beloved father Mr. Sohail Savani, finally blended with showers of blessing. May I request all of you to kindly pay attention to what our Honorable Labour Minister Shri Santosh Kumar Gangwar sir has said about our small efforts of skill development. He has said, "Dear Mr. Sohail Savani ji, I personally feel that any effort to bring the knowledge gap among the stakeholders may provide new opportunities, especially to the youth of the nation, having potential to cater the need of industry in better and more transparent manner using the digital platform efficiently. I convey my best wishes. With best wishes, yours sincerely, Santosh Kumar Gangwar." These were the words of Labour Minister of India from New Delhi. We all are really thrilled and amazed when we received this letter from the office of our Central Labour Minister, which has really given a lot of energy and courage to push this project. Let me conclude my speech by expressing my heartiest congratulations to my loving Papa, Mr. Sohail Savani, and my dear Chachu, Mr. Wasim Savani, and request Almighty Allah to bless them and give them lots of energy for fulfilling noble cause of nation building, which is primarily the object and aim of the nation. Papa, we all are proud of you. Good luck and thank you. Lastly, with my heart, I want to express my internal feelings to my father, Mr. Sohail Savani, and my chachu, Mr. Wasim Savani. I request both of them to present on the stage. Chachu. Please, Papa, please be present on the stage. He is the one who has supported in my entire life, and I hope that he will be support me in my rest of the life. Yes, he is my mentor, my supporter, and my partner in crime. Yes, he is Sohail Savani, my father, my beloved father. And there are no words to express my feelings because he has done many things to me, and whenever anyone said that no this is wrong, he has said yes this is right. अभी यूके की ट्रिप आई थी स्कूल में से, सबको मैंने फैमिली मेम्बर्स को पूछा जाऊँ यूके. एक्चुअली स्टूडेंट्स एक्सचेंज ऑफर था, इंडिया के स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएंगे पढ़ेंगे, यूके के यहाँ पे आएंगे पढ़ेंगे. सबसे पूछा, सबने ऐसा बोला that girls should not be allowed to go alone out of the country. But my father said इसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जाने की, बट थोड़े इश्यूज़ की वजह से मैंने खुद डिनाइड कर दिया जाने का. जब मैंने ये डिनाइड किया ना, तब मुझे ये पता चल गया कि अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में मुझे ये लंदन लेके जाएंगे इंशाअल्लाह. और मैं अपने पापा के लिए एक शायरी बोलना चाहती हूँ जो मैंने खुद से बनाई है, गूगल पे से भी नहीं ली या कोई और सोशल मीडिया से भी नहीं ली है. सब कहते हैं कि बेटियां हमेशा बाप को प्यारी होती है,
गौर से सुनिएगा। सब कहते हैं कि बेटियां हमेशा बाप को प्यारी होती है, लेकिन एक बात ध्यान में रख लीजिएगा जनाब, बेटियां काम ही ऐसा करती है जो खुद ब खुद बाप को प्यारी हो जाती है। अब बात करते हैं इनकी। वसीम सावानी जो मेरे चाचू है, इनको मैं छोटे पापा बोलती हूँ। ये मेरे पापा का रूप है और इनके लिए भी मैं एक शॉर्ट शायरी बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरे पापा का रूप है, तो मैं इनको बोलना चाहती हूँ। कहना, चिल्लाना और डांटना तो दूर की बात है, गौर से सुनिएगा, चिल्लाना और डांटना तो दूर की बात है, अरे गुस्से भरी नज़रों से देखा कभी नहीं है मुझे इसलिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अटेंशन टू माई स्पीच एंड थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू बेटा सो मच। देयर इज सेइंग इन गुजराती सर, मैं इसको हिंदी में भी कि मोरना ईंडा चितरवा न पड़े, मोरना ईंडा चितरवा ન પડે। या આટલા કલરફુલ મોર હોય, આવા પપ્પા ને આવા કાકા, ત્યાં તો આવો આંબો પાકે જ ને। અને જોરદાર તાલી આપણી ઢીંગલી દીકરી માટે, જેનું વિઝન મિશન અને ફ્યુચર એટલું બ્રાઇટ છે। જોરદાર તાલીઓથી ગડગડાવો એને પ્લીઝ। मतलब सर कहते हैं कि जो मोर होता है ना, मोर पीकॉक, उसके अंडे को ड्राइंग नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप ही सुंदर पनपते हैं। तो इतने सुंदर मोर जैसे पापा और चाचा है, इतने कलरफुल, इतने लाइव और इतने वाइब्रेंट, उनकी बेटी को तो बेहतर होना ही है। तो थैंक यू सोहिल भाई फॉर गिविंग बर्थ टू सच एंड भाभी जान फॉर गिविंग सच अ बर्थ टू सच अ ब्यूटीफुल डॉटर। थैंक यू सो मच। हलीमा की शेरो शायरी सुनकर मुझे कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का इनाग्रेशन नहीं है, कोई शेरो शायरी का ही प्रोग्राम चल रहा है करके। ब्यूटीफुल शेरो शायरी, सो प्रॉपर्ली एंड स्पॉन्टेनियसली शेयर्ड। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। With the kind permission of Mr. Sohail Savani, may I request we'll start the felicitation program of our guest of honors and chief guest. May I request Mr. Sohail Savani, may I request Mr. Sohail Savani to felicitate Advocate Gaurav Kumar with a small memento. A big round of applause for our guest Gaurav Kumar, who's come from Delhi all the way. Not only Delhi, I would say he has come directly from the London basically. Oh yes, yes. His program was too tight, but he has managed to come over here and honor this program. We are really thankful and grateful to him. Next guest of honor is Advocate P.R. Dave, uncle of Mr. Sohail Savani, Mr. Amin Savani, to felicitate Mr. P.R. Dave. Mr. Amin Savani to come forward, please. म्यूजिक आ ताली वगाड़ो, म्यूजिक आ रहे तो खबर पड़े તમે કેટલા સુરીલા છો। સુરતના સુરીલા છે કે નહીં? The people of Surat, Bombay and Pan India come यार, आप लोग सुरीला है कि नहीं? ताली तो बजाओ। म्यूजिकल तालियां बजाना, म्यूजिक गरबा नहीं करना वाले। Yes. Our next guest of honor will be Advocate S.K. Sharma, will be featured by Mr. Yasin Savani, father of Mr. Sohail Savani. Mr. Yasin Savani to felicitate Mr. S.K. Sharma. જોરદાર તાળી। ફાઉન્ડર મેન મને ફાધર છે, જોરદાર તાળીથી ગડગડાટથી વધાવો ભાઈ એમને। યસ યસ, બાળકો અવાજ કરો। Our next guest of honor is Mr. Surendra Kumar Suri, chairman of IPILPA, who will be felicited by Mrs. Badrun Banu, auntie of Mr. Sohail Savani. जोरदार तालियों से बताओ भाई। ब्रेकफास्ट आप सभी लोगों ने किया हुआ, एनर्जी तालियों में दिखनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। On behalf of Mr. Manoj Kumar, Deputy Director of ESSC SRO Surat, Mr. Manish Kumar is here. May I request Mrs. Ruxana Banu to felicitate Mr. Manish Kumar. Mrs. Ruxana Banu to felicitate Mr. Manish Kumar. જોરદાર તાલીઓથી ભાઈ વધાવો એમને।
Savani Institute is getting lot of blessings. Next guest of honor is Mr. G.L. Patel, who is the Deputy Labour Commissioner, Surat. Mrs. Basul Banu to felicitate Mr. G.L. Patel. Mrs. Basul Banu, auntie of Mr. Sohail, to felicitate Mr. G.L. Patel, Deputy Commissioner of Labour, Surat. Joint Director, Industrial Safety and Health, that is DISH, to be felicitated by Mrs. Amreen Banu. Wasim bhai, yes. To be felicitated by auspicious hands of Mr. Wasim Savani, brother of Sohail ji. He's not there, and he was felicitated. Yes. Mr. Ketan Desai to be felicitated with the auspicious hands of Okay, Chairman, Gems and Jewellery Export Promotion Council, Gujarat, to be felicitated with the auspicious hands of Mrs. Arjuman Manu. Mr. Dinesh Navadia to receive guest of honor from Mrs. Arjuman Banu. Thank you very much. Yes. South Gujarat Textile Processors Association to be felicitated with Mrs. Ramesh Saya. A big round of hands. Please give me a big hand. Our next guest of honor is Janab Maqsood Godil. He's not there, okay. I will to come forward and felicitate Mr. Vinod Agarwal. Thank you very much. Thank you. And our next guest of honor, the most important person, Mr. Hiren Chhada, leading Labour Law Advisor from Mumbai. जोरदार ताली भाई. To be felicitated by Mrs. Rehana Banu. Hiren Bhai Chhada. Beloved mother of Mr. Sahib. બસ ખૂબ જોરદાર તાળી સ્વાગત કરો. સોહિલભાઈના મધર એમનું સ્વાગત કરી રહ્યા છે, એમને ફેલિસિટેટ કરી રહ્યા છે. Mr. Hiren Bhai is going to be the faculty member of the institute also. Very frequently he will be visiting Surat. Yes. सूरत में काफी बार इनका आना होगा, पहले भी होता है, अभी लगता है रेलवे का पास निकाल लेंगे ये. કહે છે ને કે માની દુઆ ને માના આશીર્વાદથી વધુ કોઈ હોતું નથી. Our next guest of honor is none other than Mr. Vivek N. Mangaonkar from Mumbai, again leading Labour Law Advisor, to be felicitated with the auspicious hands of Mrs. Rizwan Banu, auntie of Sohail ji. Mr. Vivek N. Mangaonkar, leading Labour Law Advisor and Compliance Manager. The next guest of honor, just guess, I am not going to mention the name. I will request my colleague Vijay Vas to mention the name of that person. હવે જે એટલી વારથી બધાને વેલકમ કરી રહ્યા છે, એને વેલકમ કરવાનો વારો આવ્યો છે, તો આપણે સોહિલભાઈને કે ફાઉન્ડર મેમ્બરને કે દયાનંદભાઈનું ફેલિસિટેટ કરે. અને દયાનંદભાઈ પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. હું હવે તમને વેલકમ કરું છું. જોરદાર તાળીનું સ્વાગત કરો ભાઈ દયાનંદભાઈનું અને સોહિલભાઈનું, ધ ફાઉન્ડર મેમ્બર ઓફ ધ સવાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. ગ્રેટ મોમેન્ટ. થેન્ક યુ સો મચ. Mention that he is the real hero of this institute. He has done strong support to me in all aspects. Thank you so much, Dayanand sir. And तालियां इनके लिए Dayanand. Thank you Dayanand ji. Thank you so much. Well, that was all about the felicitation. May I request Advocate Gaurav Kumar to express his view. I'm sorry, I missed out one name, Mr. S.K. Gupta.
Mr. S.K. Gupta to come forward. Felicitated by Mr. Mohan Godil. Mr. Mohan Godil, yes. आइए सर. To be felicitated with the auspicious hands of Nafisa Banu. Mr. Junaid Nurani to come forward. Mr. S.C. Bamania to receive guest of honor from Junaid Bhai. Thank you very much. Thank you very much. ये मानस ये કહેવાય ને કે રીડની હડ્ડી બેકબોન ઓફ ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સોહેલભાઈ સવાણી એને આપણે બધા ઊભા થઈને સ્ટેન્ડિંગ રાઉન્ડ ઓફ ઓવેશન આપો. બધા ઊભા થઈને સોહેલભાઈનું જોરદાર સ્વાગત કરો. પ્લીઝ બધા ઊભા થઈ જ્યારે સક્ષમ હોય ન ઊભા થઈ બેસા નહીં વળી પણ એટલે ઊભા થઈ તાળી વાગવી જોઈએ ત્યારે સોહેલભાઈને હું હાથ પકડીને વચ્ચે ના લાવું. સોહેલભાઈ ક્યાં છો ભાઈ? Big round of applause for Sohelbhai standing ovation. Kumar sir, please come. Well, thank you. He's such a noble and a wonderful person. Thank you so much, sir. Please be seated. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब. कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हुआ करते? कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हुआ करते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. आज इस मंच से मैं सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट एडवोकेट गौरव कुमार जी का स्वागत करता हूं. साथ ही में उपस्थित सारे डिग्निटरीज जो मंच पे उपस्थित है उन सारे डिग्निटरीज का मैं हृदय से स्वागत करता हूं. आप लोगों ने अपने कीमती समय में से इस छोटा सा एफर्ट के लिए आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया अपना टाइम का, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. साथ में यहाँ उपस्थित सारे कंसल्टेंट फ्रेंड्स, क्लाइंट्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, फ्रेंड्स, HR फ्रेटर्निटीज़, उन सारे लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. अब वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं बिना वक्त का छोटा सा टाइम लेकर लूँगा आपको, जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट का काम क्या करेगी और ये कैसे एक सोच जागी, एक आइडिया रेज हुआ मन में. मैं पिछले 2003 से 17 साल से लेबर लॉ कंसल्टेंसी साउथ गुजरात में करता हूँ, जिसमें मुझे अवसर मिला गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट्स, प्राइवेट्स, कॉर्पोरेट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शंस, टेक्सटाइल डायमंड के यूनिटों के साथ काम करने के लिए. इन दिनों में मैंने पाया कि इंडस्ट्री के अंदर में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, उन एम्प्लॉयर्स को नुकसान हुआ कंप्लायंस को लेके, उसके लैक ऑफ अवेयरनेस को लेके. तो ये कंप्लायंस को कैसे ठीक किया जाए जिससे कि इंडस्ट्रीज़ का भी जो है नुकसान ना हो, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेबर मिनिस्ट्री ने जो रूल्स बनाए हैं उनका कंप्लायंस भी हो. दूसरा मैंने पाया जब मैं मंच पे मुझे बुलाया गया लेबर लॉ स्पीकर के रूप में काफ़ी सारे एसोसिएशन द्वारा, तो वहाँ भी मैंने एम्प्लॉयर्स का कंसर्न देखा. एम्प्लॉयर्स ये चाहते हैं कि हम कंप्लायंस करें, लेकिन वो कंप्लायंस का जो तरीका हो वो आसान हो, ऑटो रन हो. वो एम्प्लॉयर्स को, मेरी ये सोच थी कि वो एम्प्लॉयर्स को मैं कैसे हेल्पफुल बन सकूं. इसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लेक्चर देने जाता हूं, तो मैंने वहाँ देखा करिकुलम जो लेबर लॉज पढ़ाया जाता है, वो करिकुलम और इंडस्ट्री को जो चाहती है इंडस्ट्री, और जो गवर्नमेंट विभाग कंप्लायंस करवाना चाहती है, वो कहीं भी मैच नहीं हो रहा. देयर इज़ अ ह्यूज गैप, स्किल गैप है. बच्चा जो हमारा
पढ़ के आता है वो इंडस्ट्री के अंदर में लेबर लॉ कंप्लायंस नहीं कर सकता है आज की डेट में। ये मैंने पर्सनली पाया। इसके बाद जब भी मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स से मिलता रहा, एडवोकेट से मिलता रहा, तो ये बातें आई कि उनके पास ICAI के रूप में और अदर एसोसिएशन के रूप में एक मंच है जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बच्चा पैदा होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसके लिए बहुत लार्ज स्कोप है और वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है इस फील्ड के अंदर में। उसके पास नॉलेज शेयरिंग के लिए प्लेटफॉर्म है, एडवोकेट्स के पास भी है, लेकिन लेबर लॉ कंसल्टेंट्स के पास और इंडस्ट्रीज के पास ऐसा कोई फोरम या प्लेटफॉर्म नहीं है, स्पेशली इन साउथ गुजरात, कि वहाँ से वो अपनी बात रख सके या वहाँ से उनको फैसिलिटेटर मिल सके जो उनके कंप्लायंसेस को देख सके, ठीक से ऑटो रन हो सके। तो ये सारी जो चिंता मेरे सामने आ रही थी उसको एक अच्छे से मदद होने के रूप में मैंने जो है एक मेरे मन में एक सोच जगी। फिर ये सोच मैंने डिस्कस की हमारे इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स से, हमारे कंसल्टेंट फ्रेंड्स से, गवर्नमेंट ऑफिसर से। तो उनका ये कहना है कि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनता है तो ये सबके लिए आसानियां बन जाएगी और यहाँ से आप हमें ट्रेंड एम्प्लॉय दे सकते हैं। हमारे एम्प्लॉयज़ की जो ग्रीवेंसेस ज़्यादातर विभागों में लॉन्च होती है वो एम्प्लॉयर्स की ग्रीवेंसेस जो है, एम्प्लॉयज़ की ग्रीवेंसेस है, वो भी कम हो सकती है। सो ऐसा काम करने की हमें एक ये मौका मिला और ये एक सोच बनी और इसी बात को लेके मैं भारत सरकार के श्रम मंत्री जी के पास गया था उनको न्योता देने के लिए, जिन्होंने यहाँ पे अपने कुछ अदर कमिटमेंट्स की वजह से आज के दिन आने के लिए तो नहीं, लेकिन कर्टसी विजिट जब भी वो सूरत करेंगे तब हमारे इंस्टीट्यूट पे ज़रूर आएंगे। उन्होंने ये मुझसे वादा किया है। फिर उन्होंने मुझे उनके IAS ऑफिसर से मिलाया, श्रम मंत्री साहब ने, संतोष गंगवार जी ने, और मैंने ये अपना विज़न रखा। आप लोग ध्यान से सुनना, श्रम मंत्री साहब के IAS ऑफिसर जो सेक्रेटरीज है वो दोनों लोग मेरे साथ कम से कम 1 घंटे तक बैठे। उन्होंने मेरे विज़न को इतना इम्पोर्टेंस दिया कि उन्होंने अपनी VV गिरी नेशनल लेबर यूनिवर्सिटी के अंदर में प्रोफेसर से बातें की और इन्होंने 2-3 और स्किल डेवलपमेंट ऑफिसर के IAS ऑफिसर से बातें की और ये चाहते थे कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सूरत में नहीं, आपके इंस्टीट्यूट में, बल्कि पूरे भारत के अंदर में चालू होना चाहिए। ये वर्ड है IAS ऑफिसर के। ये कह रहे हैं कि ये तो हमने श्रम कायदे बनाते जा रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ नया लेते आ रहे हैं और इसके लोग कंप्लायंस कैसे करेंगे। इंडस्ट्री के पास तो ऐसे फैसिलिटेटर नहीं है और जहाँ से पैदा होते हैं वहाँ इंडस्ट्री के काबिल नहीं बन पाते हैं। तो मुद्दा ये है कि ऐसे फैसिलिटेटर पैदा करो कि जो इंडस्ट्री जो चाहती है, इंडस्ट्री का जो नोबल इंटेंशन है कंप्लायंस करने का, उसके लिए ये फुलफिल हो, वैसे बच्चे पैदा करें। और जो आदमी ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमने वो भी देखा है, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से इंडस्ट्री को नुकसान होता है। कभी कभी बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। जैसे मैं 2-3 उदाहरण दूंगा कि फैक्ट्री के अंदर में जब हादसा खुदा ना खास्ता होता है, कोई फैटल नॉन फैटल एक्सीडेंट, उस स्थिति में हमने देखा है कि 7 से 8 विभागों के अंदर में फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, जिसमें पुलिस भी है, पुलिस माटम है, हॉस्पिटल है, फैक्ट्री, ESI, PF, WC कंपनसेशन और सारी चीज़ें होती है। उस स्थिति में इंडस्ट्रियलिस्ट परेशान होता है। उसकी प्रोसीजर जो सरकार ने बताई है उसमें कैसे किया जाए। इसके साथ साथ हमने ये भी चीज़ें देखी कि ये जो काम करने वाले लोग हैं उनको बात करने का तरीका, कंप्यूटर स्किल्स, उनके पास ईमेल एटिकेटी, उनके साथ जो बिहेवियरल और सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए बात करने की, वो भी ज़रूरी है साथ में। तो हमने लेबर लॉस के साथ स्किल डेवलपमेंट को क्लब कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने एक क्लब किया और मैंने ये विचार अपने भारत के बहुत जो मेरे नेटवर्क है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नेटवर्क है वो मेरा नेटवर्क साउथ गुजरात के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करे और इंडस्ट्रीज़ के कंप्लायंसेस को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की आवाम में एक ऊर्जा भर दे, जान भर दे, मैं चाहता हूँ। तो इस जब मैंने ये विज़न जब अपने हमारे भाई और दोस्तों से, हमारे सीनियर से रखा,
तो वो लोगों ने मुझे बिना हिचकिचाए इमीडिएटली बोला, सोहेल तू जब बुलाएगा मैं उस दिन तेरे लिए हाजिर रहूँगा, तू सेशन चालू कर, हम लोग तेरे साथ है और हम लोग ऑलरेडी आपको ये सेवा देंगे। तो ये चीज़ जब सामने आई, क्योंकि ऐसा नहीं है सब लोग पैसा कमाने के लिए है, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास मेरा जो बिजनेस है कोर बिजनेस, उससे मैं बहुत कमाता हूँ, ऐसे हर किसी के पास है। यहाँ पे हम जो बैठे हैं वो हम चाहते हैं कि हम इंडस्ट्रीज़ की, हम युवा की, हम जो प्राइम मिनिस्टर का विज़न है उसको साथ में लेके चले और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्किल डेवलपमेंट करें ताकि लोगों को अच्छा रोजगार मिल सके, लोगों को अच्छी पोस्ट मिल सके और इंडस्ट्रीज़ को अच्छे लोग मिल सके। तो ये सारे कंसेप्ट है। इसमें हमने अलग अलग लोगों के लिए बिगिनर्स, एडवांस और मास्टर्स, 3 तरह के हमने कोर्सेज रखे हैं। आप देखेंगे मास्टर्स कोर्स मेरा, मैं कहूँगा कि ज़्यादातर कंपनी के एम्प्लॉयर को ये ज्वाइन करना चाहिए। भाई मेरी इंडस्ट्री है, मुझे पता होना चाहिए कि ये जो मेन स्किल्स है, जो मेन जानकारियाँ है वो मेरे साथ होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, ये सिचुएशन में क्या करना है। कभी सरप्राइज इंस्पेक्शन आता है तो क्यों आता है, उस सिनेरियो में वो क्या कर सकते हैं। अगर ऑडिट आता है तो बैलेंस शीट से कैसे चेक होता है, उसके अंदर में कौन कौन से हेड पे वो ESIC PF जमा करवाने को कहते हैं। अगर वो आप पहले ही भर देते तो आपको जो 100% पेनल्टी है वो नहीं लगती। तो मैं चाहूँगा कि एम्प्लॉयर खुद टाइम निकाले, उनके जो मेन स्टाफ है उनको कहें कि आप मास्टर्स कोर्स में आप अपना एनरोलमेंट कराएं। इसके बाद जो जूनियर लेवल पे लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि भाई एम्प्लॉयर चाहता है कि तू जब कंप्लायंस करके देगा तो वो कंप्लायंस तेरा ठीक होगा तो तेरी अच्छी जॉब मिलेगी, तेरी अच्छी वैल्यू बनेगी। तो कंप्लायंस कैसे करेगा, तू पोर्टल पे काम कैसे करेगा, तू रिटर्न क्या भरेगा, कौन सी कॉलम में कैसे फिल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तुझे जब पता चलेगी। ये कहीं नहीं लिखा है, कोई बुक्स में नहीं लिखा है, और अगर वो बुक्स में लिखा हुआ भी है तो तुझे समझने में बहुत वक्त लगेगा। हम बैठे हैं, हमारी इंस्टीट्यूट बैठी है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज है, हम आपको समझाएंगे कैसे करना है। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जब ये सीख लोगे आप कहीं नहीं रुकोगे, आप चलते रहोगे हमेशा। तो वैसे के लिए हमारे पास एडवांस कोर्सेज है और लेबर लॉज के ऊपर जानकारियाँ हमारे यूथ में नहीं है। क्यों बनाए गए भाई, तुझे अगर ये लेबर लॉज के फील्ड में आना है तो पहले समझना चाहिए कि भारत में क्यों लेबर लॉज पैदा हुए, क्यों किए गए, कैसे किए गए, इसका मेन मकसद क्या है और इसको कैसे कंप्लायंस करते हैं। तू इंडस्ट्री में जाएगा, भले ही तू लेबर लॉज ना करे, लेकिन तू लेबर लॉज की जानकारी तुझे रखनी जरूरी है। तो बिगिनर्स के लिए हमारे पास वो कंप्लायंस से वो कोर्स है ताकि वो बिगिनर्स भी उसको मीट कर सके। इसके बाद हमारे पास PF, ESI, PT और LWF पे हमारे पास एक ट्रेनिंग कोर्स है, लाइव ट्रेनिंग कोर्स। उसमें आप समझ पाओगे कि कैसे पोर्टल पे काम किया जाता है ताकि आपके जो 500-700 वर्कर्स या जो भी वर्कर्स है उनके सारे काम आसान हो जाए, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास कंप्लेंट्स कम हो, वर्कर्स को ज़्यादा तकलीफें ना हो, एम्प्लॉयर भी खुश हो, पैसा जमा होता है, सारी चीज़ें मुझे मेरे वर्कर्स को ठीक से मिल रही है। 4 कोर्सेज के साथ और ग्रेजुअली हम लोग इवेंट्स भी कुछ स्किल डेवलपमेंट पे करेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ हम ये कोर्स चालू करने जा रहे हैं। ये कोर्स, ये इंस्टीट्यूट मेरी नहीं है, हमने 50 लोगों ने एक साथ इंडस्ट्रीज़ की तरफ और यूथ की तरफ और जो काम करने वाले हैं उनकी तरफ कदम बढ़ाए हैं एक एक। अब मेरा आवेदन है कि हमारे इंडस्ट्रीज़ मित्रों को आवेदन है कि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को बताएं, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को इंसिस्ट करें कि भाई ये तू अपने बंदों को भेज ताकि इंडस्ट्री के अंदर में पीस और हार्मनी बनी रहे, किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो थोड़ी बहुत तकलीफ़ है आपको कोई फैसिलिटी को लेके हैं तो हमारे साथ CBT के मेंबर भी हैं SK शर्मा साहब, और जो भी हमें उनके थ्रू रिप्रेजेंटेशन करवाना है वो हम कर सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट आपको, ये आज के इस मंच से मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आपको इंडस्ट्री के अंदर में कोई भी लेबर लॉ को लेके कोई भी तकलीफें हों तो आप अगर हम हमारे इंस्टीट्यूट में आप हमें बताएं, हम आपको रिप्रेजेंटेशन लेके देंगे, हम आपकी बात वहाँ तक बता के रहेंगे। हमारे पास सारे सोर्सेस हैं, हम वहाँ तक जा सकते हैं। सो ये मेरी थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगेन मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए, सारे डिग्निटरीज का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे ठीक से सुना। थैंक यू सो मच सर। Well, that was the wonderful vision shown by Sohail ji of his mission. Give him the big applause and congratulate and also wish him good luck for his all endeavors.
Now may I request, we are running short of the time, but may I request Advocate Gaurav Kumar to express his few words for today's program.